Okay, so again, kind of an involved question. This is an easy question, but only if you know the concept. That is, this is given an and as n tends to infinity, we need to find the indeterminate form if it is that is. Okay, so now background. Actually, तुमने जैसे आईटी कोचिंग में बच्चों वाली चीज़ें सीखेंगे डोमिनेंट टर्मिनल के इन्फिनिटी पे, तो भाई इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम, तो नीचे वाले इन्फिनिटी को टेंड कर गया और ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को टेंड कर गया. बट ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं. व्हेन यू विल एक्चुअली delve deeper, you will realize that many चीज़ें जो आईआईटी वगैरह में पता वो ऐसे ही बता देते हैं हवा में कि याद कर लो, और बहुत सारे लोग याद करने में अच्छे होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. बट मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट which is far beyond any standardization that you can give to it. It's beyond that. This type of thing बच्चों के लेवल पे ही चलता है, but in kind of higher mathematics you need to have a background on everything. You need to give argument, you need to have logic, formal logic under your belt. I realized when I started to study mathematics seriously in probably the second sem. So in first sem my mathematics was very good in the multivariable calculus and all, but in second sem my performance dropped a little bit because I started paying less attention to the way I used to study. Everybody used to study in IITs and all, competition oriented, which is completely useless now because I have a wider perspective than before. So now I don't just remember stuff randomly. Anyway, I'm not that good in rote memorization. Like you have to just learn inorganic chemistry and all. Even organic you have to learn and all. Similarly in physics you need to kind of understand the concept, but feel is a overrated thing. It is again conceptual memorization, and in maths also things like these have to be memorized. Now I'm not gonna go into philosophy of all this. I would say it is very like how like एक कुत्ते को ट्रेन किया जा सकता है. So how good of a dog are you depends on how good you would do in these things. But we will not do these things now. We are now grown up, not being brainwashed by the parents or the teachers of IT coaching. So we will do it abstractly. Reason it out. Denominator infinity minus infinity को जाता है और n infinity पे ये फॉर्म हमने देखना ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 जो कि एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम जानते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है. क्या किया, जो मैंने एक बताया था इससे पहले, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा 1/4m माइनस 1/4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4m टाइम्स 4m स्क्वायर. अभी ये ज़ीरो टेंडिंग में ज़ीरो टेंडिंग है. जो बताया था मैंने इन्फिनिटी 1 मान लो इसको, इन्फिनिटी 2, क्योंकि अलग अलग रेट से जा रहे हैं, और फिर सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. फिर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/1 टेंडिंग बाय होल 1 टाइम्स infinity 2 टेंडिंग. This kind of thing. This is mathematical manipulation in this. So then what you do is you differentiate -1/n square plus 2/4 n cube
16 minus 3 and 4, which is in the limit tends to infinity again. First we cut the n square minus 1 plus 1 by 2 n. This is basically minus 3 by 16 n square. This is infinitesimal, this is finite. So actually it is 1 by 4. 1 by 4. Whatever, it is finite by infinity tending. Yeah. Sorry. It's finite by 0 tending because डिनोमिनेटर में 1 over n टाइप की चीज़ है, तो ये इन्फिनिटेसिमल है. सो फाइनाइट बाय 0 टेंडिंग इज इन्फिनिटी टेंडिंग. तो इसीलिए हमने बोला कि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी टेंडिंग है फाइनली. तो इसीलिए ये जो मैनिपुलेशन करके बताई अभी, यहाँ से आता है टर्म डोमिनेशन, जो ऐसे रटवा देते हैं. तो now enough of the roasting of the IT coachings. इसीलिए हमने डिफ्रेंशिएट किया डायरेक्टली. तो ये इन्फिनिटी टेंडिंग में इन्फिनिटी टेंडिंग ये ऐसे लिख सकते हैं, जो भी इतने सारे चुतिया पकड़ के बताया उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं. फिर हमने बोला कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो एल हॉस्पिटल से बोलेगा, तो 4n बाय 8n माइनस 4 वी अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे 1 by 2 टेंडिंग की पावर n. अभी 1 by 2 ये मत बोल देना कि इंडिटरमाइंट फॉर्म एक ऑप्शन है कि ये तो अनडिफाइंड चीज़ है. 1 by 2 टेंडिंग की पावर इन्फिनिटी टेंडिंग, तो ये तो भाई ये हो जाता है, ये 1 से बड़ा बेस है, तो ये 1 by इन्फिनिटी टेंडिंग, तो ये तो 0 हो गया. लिमिट की वैल्यू आ गई. इनडिटरमाइंट फॉर्म थोड़ी है ये तो लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, डिटरमाइंट फॉर्म है. तो बाकी बुद्धिमान है वो सही ऑप्शन क्लिक करते हैं वहाँ पे है जो. ये मेथड 1 था. अच्छा, दूसरा मेथड जो जुगाड़ होती है वो भी कर सकते हैं. न्यूमरेटर को नीचे भेज दिया, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है. वैसा करने से क्या हुआ, लिमिट का अरिथमेटिक रूल लग जाएगा. ये इन्फिनिटी टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग और ये इन्फिनिटी टेंडिंग, तो ये काइंड ऑफ इन्फिनिटी टेंडिंग ओवर इन्फिनिटी टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग और इन्फिनिटी टेंडिंग 1 by n और ये इन्फिनिटी टेंडिंग. तो ये पता है, बस हो गया मैनिपुलेशन. ऐसे भी कर सकते हो. तो कर लोगे मोस्ट प्रॉब्ली. ऐसे माइंड से करता है. 1 over इतने पार्ट की लिमिट आएगी 4, तो फर्क नहीं पड़ता. n स्क्वायर है तो 4 by 2 आ जाएगी. यहाँ पे जो आएगी फिर नीचे एक n आएगा. इन्फिनिटी पे ओवरऑल वो इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा. अंदर तो फाइनाइट ही आता है लैटिस में, तो वो 0 हो गया माइनस 0, और ये 2 by 1 है तो ये 1 by 2 अगेन आ गई इन्फिनिटी टेंडिंग, जो कि 0 आता है. तो या दैट्स इट.